Vivek Chudamani. We are summarizing sloka number 320. जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहे स च केवलः यत्किञ्चित् पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुश्रुतिः. The beauty and the uniqueness of Advaita Vedanta is to attain Jivan Mukti Avastha, getting liberation while living. Other than Advaita Vedanta, all the darshanas, philosophies, religion, all the cults, sects, they also talk about liberation, moksha. But that moksha after death. Advaita Vedanta only tells nobody knows what happens after the death. So you have to attain the liberation while living. And yesterday also we have discussed on it. कि वही व्यक्ति यथार्थ सिद्धि और जीवन मुक्ति प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति विचारशील है, परोक्ष ज्ञान युक्त है, जिनके अंदर थोड़ा सा भी प्रमाद नहीं है, डिल्यूजन. If there is delusion in life, whether he is a sadhaka, whether he is a paroksha jnana yukta, whether he is a vicharashili, discriminating personalities, but it is like death agony. At the other hand, the sadhaka who are established in this knowledge of Brahma Vidya, he is really Siddha and Jivan Mukta. So, without any tiring your mind, tirelessly, always, at every bit of your activities and breathing, be alert and keep your mind fixed into the knowledge and do anything else. Like the kite, it is flying in the space, but the thread is in the hand. Previously, in our childhood, there was a game. Budi Choa. There will be one old lady, and your target is to touch that lady. If you can touch her, nobody can make you out of the game.
और वो बूढ़ी को छूना मतलब ब्रह्म ज्ञान को छू के रखना। इन द सिटी ऑफ कोलकाता, everybody doesn't get chance to enter into the bus, at least at the office time. So many people, they hang from the gate of the bus. Yes, it is true that by the grace of God, they are not falling down. But at the same time, they are holding the rod with their one hand. If they lose their hand, they will fall down and accident may happen. In our life, whatever you do, your profession, your activities are different. Someone spending a retired life, someone still student, someone professional, someone householders. What about the activities you are in? Continue your duty. But in one hand, hold the knowledge you have acquired by Sravanam. जो व्यक्ति जिंदा रहते ही जीवन मुक्ति अवस्था लाभ करते हैं, मृत्यु के बाद उनका अवश्य मुक्ति लाभ होता है। यही शास्त्र की वादा है। यीवतः यस्य कैवल्यम विदेहे स च केवलः। जो व्यक्ति जीते जी जीवन मुक्त हो गया, वो व्यक्ति अपने शरीर शांत होने के बाद अवश्य मुक्त हो जाएंगे। यही हमारे शास्त्र की कहना है। यजुर्वेद की अंतर्गत तैत्तिरीय उपनिषद बोलते हैं, किसका डर होता है? लोग बोलते हैं मुझे बहुत डर लग रहा है। जो भेद दर्शन करते हैं उनका डर लगता है। यत् किंचित पश्यतो भेदम भयम ब्रूते यजुश्रुति। श्लोक नंबर 330। यदा कदा वापि विपश्चिदेश ब्रह्मण्यानन्तेऽप्यनुमात्र भेदम् पश्यत्यथान्युष्य भयं तदैव यद वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्। जो साधक विचारशील होता है, अगर ये विचारशील साधक अगर एक पल के लिए भी भेद रहित ब्रह्मन में अनुमात्र भेद भी दर्शन करते हैं,
तो उनको he is attacked by pramad, delusion. Suppose you can think that I can understand these things. You see the world's condition, right? There is only one space. There is no doubt. There is only one space. But out of delusion, we try to divide the space and start saying, this is our space. कुछ साल पहले, आपको याद है या नहीं, a flight was flying and कोई देश कमान से उस पूरा विमान को ध्वंस कर दिया, सारे के सारे लोग मर गए। क्यों? ना उस देश की विमान, कोई दूसरा देश की विमान इनकी आकाश व्यवहार कर रहे थे। दे आर दे वर यूजिंग वन country's space without taking the permission. भगवान की रचा हुआ एकमात्र स्पेस, बट हम लोग उसे डिवाइड करते, ये मेरा स्पेस है, ये तुम्हारा स्पेस है, ये लिविंग स्पेस है, ये डाइनिंग स्पेस है। देखिए शास्त्रकार कितनी बुद्धिमान है, कितनी दूरदृष्टि संपन्न। दिस स्टार्टेड यदा कदा वापि वा अपि विपश्चिद एषः ब्रह्मणि अनन्ते अपि अणुमात्र भेदम। अनंत ब्रह्मन जिसमें कुछ भी भेद नहीं है, अगर भेद रहित ब्रह्मन में हम लोग अणुमात्र विभेद को महसूस करता हूं, देखता हूं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आउट ऑफ डिल्यूजन वस्तु को आत्मा से भिन्न रूप में देखेंगे। पश्यति अथ अमुष्य भयम तदैव यद वीक्षितम भिन्नतया प्रमादात्। जो व्यक्ति कोई भी वस्तु को आत्मा से या खुद से अलग देखते हैं, वही वस्तु उस व्यक्ति के लिए भय की कारण होता है। श्रुति स्मृति न्याय सतैः निषिद्धे दृश्येऽत्र यस्वात्ममतिं करोति उपैति दुःखोपरि दुःखजातम् निषिद्धकर्ता समलिं लुचो यथा। Hundreds of स्मृति वाक्य और युक्त के द्वारा ये दृश्यमान प्रपंच प्रमाणित हो चुका है, ये मिथ्या है। 100,000s of sentence from the Veda Upanishad, Smriti Grantha, Smriti Grantha, a lot of logic
A lot of scientific justification we have proved. The whole perceived world is mithya, mithya, mithya. फिर भी हे साधक, तुम आउट ऑफ डिल्यूशन, तुमने श्रवण किया है लेकिन ठीक से मनन नहीं किया। इसीलिए शास्त्र की ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं हुआ। शास्त्र की ज्ञान शास्त्र में ही रह गया। तुमने रट लिया। कभी भी तुम कोट कर सकते हो, अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, जीव ब्रह्म इव नापरः। यू कैन कोट फ्रॉम हियर एंड देयर, लेकिन उसमें दुख नहीं जाता। सपोज a person used to do job in a medical shop and knows the names of different medicines. Now his condition is like a doctor, is very experienced. What about the disease? He comes to know, oh, this is fever, paracetamol. Anaerobic infection, metronidazole. Toothache, okay. Listen, Butaflame plus wonderfully works. I'm having back pain. So listen, you can use hyphenac P, but it is overdose. You can take aceclofenac. So many medicines name that person. Oh, heart disease. You take clopidogrel. Don't you take atorvastatin? So many medicines name. But unless and until a person take the medicine will not work. Likewise, knowing a lot of Shruti Vakya, Smriti Vakya, know a lot of justification, Yukti, logic, solid. But unless and until you own up that knowledge, unless and until you are established in that knowledge, unless and until there is the firm conviction of this knowledge, there is I-ness and my-ness. A person is very proud to declare that I am an emotional person or I am an emotionless person. So many description about himself or herself. And that person is very proud about his or her characteristics. They are intellectuals, they are knowledgeable, but they don't use their knowledge to rescue them.
They use their knowledge to kill them. This is killing actually. When you start praising your dosha, actually you are killing yourself. Vedanta is the last resort. Vedanta is the best mirror in front of you, who shows you who you actually are. Take the refuge of Vedanta and get rid of I-ness and minus. All that emotional locha will go. Emotions will be there, but emotional locha will not be there. So many things every day I get you. They are proud that they are emotional. Don't take anyone here personally, because I am to deal so many people and the same problem, because they don't try to own up the knowledge of Vedanta. That's why they are so-called Vidwan, but ज्ञान की मालिक नहीं बन पाया, इसीलिए डर के मरते हैं. That's the main problem. जो व्यक्ति मैं और मेरा ऐसे बोध में रहते हैं, शास्त्र, युक्ति, शास्त्र का सारे निषेध, गुरुवाक्य का निषेध अमान्यकारी, वो व्यक्ति चोर है. वो व्यक्ति की जीवन में कभी शांति नहीं आता. वो व्यक्ति दुख के बाद दुख, नेक्स्ट दुख, नेक्स्ट दुख, नेक्स्ट दुख. जैसे हमारा होता है ना, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, ऐसे करके बोर्ड एग्जाम, क्लास 10, देन अनदर बोर्ड एग्जाम 12, another board exam graduation, another board exam masters. ऐसे ही ये व्यक्ति दुख का ग्रेडेशन बढ़ाते हैं. वो व्यक्ति चोर है. शास्त्र बोल रहा है, उपैति दुखो परिदुख जातम, निषिद्ध कर्ता सह मलिम लुचो यथा. दिवाकर चैतन्य नहीं बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है. अभी भी समय है, सुधर जाओ. सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तः महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यम्. मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत्, दृष्टं तदेतद् यदचौरचौरयोः. ब्रह्मनिष्ठ. अच्छा, क्यों चोर बताया? एक अब सोचा है कभी? देखिए, चोर एक ऐसे व्यक्ति है जो दूसरे की सामान लेकर ज्यादा चिंतित है, जी कहां पर क्या क्या है.
इसके पास नया गाड़ी आया, नया फ्रिज आया, नया टीवी आया। कल मिसेस XYZ को मैंने देखा बी सरकार जोहरी से कुछ खरीदते हुए। तो अभी अभी बैंक में नहीं रखा, घर में ही रखेगा। चोर इज सच ए पर्सनालिटी जो दूसरे की घर में क्या हो रहा है इसमें ज्यादा अटेंटिव है। हमारे जीवन में भी देखो, वी आर टू मच नॉट ओरिड, ऑलवेज थिंकिंग वो क्या किया, वो क्या किया, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, other than looking our own self, we are always looking for others। चोर जैसे कर। सेकेंड थिंग, चोर हर वक्त डर के रहते हैं पकड़ न जाए। ऐसे व्यक्ति भी डर के रहते हैं। उन लोग सोचते हैं कि मैं किसी से पकड़ नहीं जाऊंगा, बल्कि पकड़ जाते हैं। और बहुत पिटाई होता है चोर का, आपने देखा कभी? पता नहीं। हम लोगों का भी पिटाई होता है, भगवान से, अवस्था से, व्यक्ति से। आप लोग महसूस नहीं कर पाते। और मार खाते खाते अभ्यास हो गया, ठीक है भाई, वो दूसरी बात है। इसीलिए जो चोर है वो कभी स्वाभाविक जीवन जापन नहीं कर पाते। एक तो उनका दृष्टि हर वक्त दूसरे के ऊपर, हर वक्त डर के मरते हैं, हर वक्त पिटाई खाने की डर है, पकड़ा जाने की डर है, सम्मान जाने की डर है। इसीलिए शास्त्र ने उनको चोर बताया है। तो सत्य अभिसंधान रतो विमुक्त, जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, जो भ्रांति ज्ञान जिनमें नहीं है, वो इज नॉट डिल्यूडेड एनफ। जो व्यक्ति भ्रांति से पार हो गया, जो व्यक्ति शास्त्र का अनुभव करने लगा। देखिए ये महाकुंभ क्या है, आपने कभी सोचा? गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन नदी की मिलन को ही हम लोग कुंभ बोलते हैं। जिनमें से गंगा और यमुना को दिखाई देता है, सरस्वती को नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर तीन नदी का त्रिधारा है, शरीर, मन और हमारे बोध, अनुभव, चैतन्य का जो करीब है, जिनको दिखाई नहीं पड़ता। मन को दिखाई पड़ता है, यू कैन विजुअलाइज मन, नॉट बाय योर that physical eyes, but some by some other index you can visualize your mind। बट ये अनुभव एक महसूस है, एक बोध है। शरीर, मन, आत्मा की महाकुंभ हर रोज हमारे अंदर चल रहा है, उसमें डुबकी लगाओ, उसे ही ज्यादा पवित्रता मिलेगा। ये गंगा, यमुना, सरस्वती इतना कुछ करके डुबकी लगाने से पुण्य नहीं होता।
अपने अंदर की कुंभ में डुबकी लगाओ। जो व्यक्ति सदा सर्वदा स्वरूप की अनुभव करते हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी भ्रांति नहीं है, वही ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन ऐसा जिनका नहीं हुआ, जो ये मिथ्या शरीर, मन, बुद्धि, ये सारे दृश्य पदार्थ में मैं ये हूं, आई एम दिवाकर चैतन्य, ऐसे अभिमान जिनके रहता है, उनका सर्वनाश होता है। चाहे वो दिवाकर चैतन्य भी हो। जो ये मैं हूं इस ज्ञान में दृढ़ है, उनका सर्वनाश होता है। जो चोर है, उनका शास्ति लाभ होता है। और जो चोर नहीं है, लेकिन चोर के रूप में पकड़े जाते हैं, विचार के बाद उनका मुक्ति हो जाता है। यतिरसद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय स्वयं अयम अहमस्मित्यात्मदृष्टैव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतम। सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जो फगुआ पहने हुए है? नहीं। सन्यासी वो है जो ये देह आदि मिथ्या वस्तु की चिंता छोड़ देता है, खुद का और दूसरे का। सिर्फ एक ही चिंता में मशगूल रहते हैं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं। अपार शांति महसूस कर। दूसरा व्यक्ति घटिया जीवन यापन कर। उनका पोशाक हो सकता है जेंटलमैन्स वेयर। हम लोग जेंटलमैन वेयर मतलब तो ब्रिटिश का वेयर ही समझते हैं, कोट टाई ऐसे ऐसे। जो भी है, वही सन्यासी है। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी रह सकता है, ब्रह्मचारी आश्रम में भी रह सकता है, वानप्रस्थ आश्रम में भी रह सकता है। उनका पोशाक कुछ भी हो सकता है। वही सन्यासी है जो देह आदि मिथ्या वस्तु की चिंता परित्याग करते हैं। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ऐसे आत्म दृष्टि लेकर जगत को देखते हैं। ऐसे आत्म दृष्टि लेकर जो जगत को देखते हैं, उनके पास अभेद बोध उत्पन्न होता है। उनका ब्रह्म निष्ठा उनके सुख के कारण होता है। सुख के कारण एक ही है, वो है ब्रह्म निष्ठा। ये ब्रह्म निष्ठा क्या है? न हमारे अविद्या से उत्पन्न उत्पत्ति लाभ किया हुआ जितना दुख, हमारे जीवन में जितना दुख है, चाहे फिनेंशियल दुख, चाहे सोशल दुख, चाहे रिलेशनल दुख,
आउट ऑफ डिल्यूजन, आउट ऑफ इग्नोरेंस सारे दुख चला जाता है और व्यक्ति अपार आनंद में रहते हैं। उसे ही ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो हरि ओम। Please switch on your video. हरि ओम पोद्दार जी, हरि ओम सुशील बाबू, हरि ओम जेटली जी, हरि ओम विजया अम्मा, हरि ओम शुक्ला अम्मा, हरि ओम सलील बाबू, हरि ओम घोष बाबू, हरि ओम देवांजन बाबू, हरि ओम कृष्णा पाजा अम्मा, हरि ओम सौम्या अम्मा नारजा जी। भोला ভিডিওটা খোল, ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়। হরি ওম টু সুস্মিতা আম্মা। ঘর অন্ধকার কেন রে এখনো? 8:30 বেজে গেছে। হরি ওম টু সুস্মিতা আম্মা। সাত্বিকা ছিল, কোথায় গেল? ওকে। হরি ওম টু এভরিওয়ান এলস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে গীতা ক্লাস হবে? হ্যাঁ, আজকে গীতার ক্লাস হবে। প্রীতম ও মাস্টার্স করেছে, করে বিএড করেছে, এখন এমএড করছে বেলুড় থেকে। ভেরি গুড বয়। ওকে, ভালো থেকো সবার, ভালো হোক, সবার মঙ্গল হোক। 11:30 ভগবত গীতা ক্লাস।